Good morning everyone. In this lecture we will continue our topic, that is the organization of data. थोड़ा सा theoretical point of view we already seen in the previous lecture. Now today we will start our numerical based on this chapter. That is the bifurcation. This chapter is the complete combination of theoretical and the practical abstraction. So practical based already you know everything students, because we already done the chapter that is standard tendency. In the standard tendency you know the what is exclusive series, what is inclusive series, what is mid value, why it is find out of x bar निकालने के लिए हम mid value निकालते हैं definitely. So you know everything about that or this series, but just we can say इस chapter में हम थोड़ा सा recap करते हैं for 10th standard and 11th standard. Fine. So that is the first questions given in your book. So first represent the marks of 28 students of class 11th in the form of the discrete frequency distribution, है ना. It means 28 students के marks आपको given है class में, 28 students के marks given है. So you just prepare the frequency distribution. As you know what is the frequency distribution, first find out your class interval, then tally mark, and then find out the total frequency. Here the 28 students marks is given to you, but I am not writing the entire 28 students mark. I am just saying that here first what you say, do first you just find out the what is the minimum marks. So here when we have started the first question, I just post this all questions in your WhatsApp group. So focus here only how to calculate the questions. So first you would enter the lowest value and highest value. That is the technique. First, so here the given 28 marks, lowest value is 10 and highest value is 25. ठीक है? Lowest value is 10 and highest value is 25. If you are making the group, it is also good. So you just making the group 0 to 10 and 10 to 20 and 20 to 30, like this also. But here only 3 or 4 marks is given to you. It means आपको केवल 4 और 5 तरह के मार्क्स हैं. मतलब 1 mark is 10 and 15 and I think so 20 and 25. मतलब स्टूडेंट्स के केवल ये 4 मार्क्स ही आए हैं. इनके अलावा कोई मार्क्स स्टूडेंट ने ग्रैब नहीं किए. सो यू जस्ट राइट डाउन दिस टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी. अगर क्लास इंटरवल बनाओगे तो काफी छोटा बनेगा. सो आपको एग्जैक्टली बाइफिकेशन नहीं आएगा. सो यू पुट दिस 4 नंबर एज अ एक्स. फाइन. सो मार्क्स 10, 15, 20 and 25. Right? Now here tally marks and here frequency. Now one more thing students, आप लोगों ने किस वे में आगे सीखा है I don't know, but this is the easy way. I am just writing here entire 28 students marks, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 15, 20, 15, 15, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 25, 20, 10, 25, 20, 25, 25, 10, 25, 25, 10, 25, 15, 20, 10, 15, 20, 10, 20, 15, 10, 20, 15, 10, 20, 15, 20, 20, 15, 20, 10, 15, 10, 15. Here 28 students are given. Yeah? मतलब आपका ये टोटल 28 होना चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. But it means one missing है. फाइन, वो हम लोग
बट यहाँ हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं मैथड, डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट मैथड होता है, ठीक है। सो फर्स्ट अगर सपोज आपने ऐसा सीखा है कि 10 है, सो आप यू जस्ट फाइंड आउट द हाउ मेनी 10s आर देयर, दैट इज अ रॉन्ग मेथड, और इट इज मे बी द डिफरेंट मेथड, है ना, रॉन्ग मेथड तो नहीं है क्योंकि उस मेथड से भी आंसर तो आता है, बट इट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड मैं आपको बोल रही हूँ, जिसमें प्रोबेबिलिटी दूसरी बार आपको चेक नहीं करना पड़ेगा। सो प्रोबेबिलिटी सपोज 20, सो यू जस्ट कट दिस 20 एंड लिसन, यहाँ हम लोग एक मार्क कर देंगे, सो पुट वन मार्क हियर, clear, then 15, so put one mark, 10 1 15 1 mark, 20 1 15 1 10 1 20 15 10 25 20 25 25 10 25 15, 4 के बाद 5th ऐसा होता है, आपको पता है, 20 10 20 15 10 20 15 20 10 15। यहाँ मैंने एक डिजिट कम लिखा है, सो आई जस्ट चेक इट आउट, कहाँ कम है, 7 9, यहाँ एक 15 कम लिखा था मैंने, सो हियर है, सो टोटल 5 and 2 7, 5 and 4 9, 5 and 3 8, and it is 4. Just total it out, 7 plus 9 plus 8 plus 4, total is 28, है ना। Listen students, अगर आप भूल जाते हो, सपोज आप सब करते करते भूल जाते हो कि हम कहाँ थे, कहाँ तक टाइम हमने काउंट किया, सो इट इज द वेरी इजी फॉर्म कि आप इस तरह से एक नंबर कट करते जाओ और वहाँ लिखते जाओगे। सो क्या हो जाएगा, आप कहीं भी मिसप्लेस नहीं करोगे, आपने कट किया, इट मींस योर दैट नंबर इज काउंटेड, फ्रेंड, तो मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी कम रहेगी, एग्जाम में टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा, आप इजीली एक ही बात में पूरा सब करेक्टली कर सकेंगे। क्लियर? नाउ वी जस्ट स्टार्ट द सेकेंड इलस्ट्रेशन और सेकेंड एग्जाम्पल। Now here we can see that another question number 2, we can see the marks is given to you. So first column is marks, second is the tally mark, and third is the frequency. Clear? Now listen students, here you see that clearly the minimum marks is 5 and maximum is 10, and that is हम लोग को ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि not so many marks are there, so we can start from 5 to 10, so 5 6 7 8 9 and 10. Clear? Now we can put the values in this, that is the total. Now students, first 8, so put 8 9 9 5 8 6 7 9 10 8 7 8 6 7 10 7 5 8 5 6 7 9 8 6 10 8 7 7 8 9 8. Clear? So we will done all these things. Now total 3 and 4, then 7, then 9, then 4, then 3. You just put the total, just either 3 4 7 9 4 3. This total
और वी कैन से इन द डिस्ट्रिक्ट सीरीज, है ना, जब हमारे पास x ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट सीरीज. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रिक्ट सीरीज. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द कंटिन्यूअस सीरीज और वी कैन से ग्रुप्ड सीरीज. फाइन. अब ग्रुप सीरीज में क्लास लिमिट्स क्या होती है, क्लास इंटरवल क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होता है, ये सब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन में देख लिया है. सो वी जस्ट स्टार्ट द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ग्रुप्ड सीरीज. Now this is the exclusive and inclusive series. What do you mean by the exclusive and inclusive series? Listen students, when we are doing with the exclusive series, that is the one difficult. What is the difficult? Last low upper limit is not matched to the another lower limit. अब ये क्या होता है, आप लोग ऑलरेडी एक्स बार में हम लोग मेन में सब समझ चुके हैं. Still we are discussing here again. So marks. Suppose the marks is given to you that 10 to 19. 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, and last is 60 to 69. Now the frequency is the number of students are given 4 to 12, 4 to 12, 10, 9, 3, 10, 9, 3. It means total number of students are given to you, that is the 40 students. Clear? Now listen students, suppose we are doing sum, so that is the very difficult. Suppose marks है, so marks जिसके 19.5 आया वो कहाँ जाएगा, है ना, 19 और 20. इट मीन्स इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट सेम ना हो तो उसको हम कौन सी सीरीज बोलते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज. और जिस दोनों के अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट सेम हो तो उसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज. जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं ऑन द बेस्ड ऑन द इंक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज से हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते हैं. सो अभी इस सीरीज को मुझे इंक्लूसिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी. सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन दोनों का क्लास इंटरवल चेंज होना नहीं चाहिए. नाउ हियर यू सी दैट दिस इज द क्लास इंटरवल, है ना, जितना भी क्लास इंटरवल है इनका क्लास इंटरवल विदाउट एक्सचेंज करे हुए आपको इसको क्या करना है, इंक्लूसिव में करना है. तो उसके लिए क्या टेक्निक यूज करनी है, तो सबसे पहले आप लोगों को लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करना है. सो योर दिस इज द 9.5. यू जस्ट माइनस फ्रॉम द लोअर लिमिट 0.5. एंड सेम आइडिया, मैंने क्या बोला, अगर माइनस करोगे तो क्लास इंटरवल चेंज हो जाएगा, बट यू डू नॉट चेंज द क्लास इंटरवल बिटवीन द टू वेरिएबल्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू ऐड द अपर लिमिट साइड 0.5. देखो यहाँ से 0.5 कम किया है, यहाँ 0.5 ऐड किया है. इट मीन्स इसमें कोई भी वेरिएशन आएगा नहीं. So class interval is same, still your inclusive. Again see that 20. So 0.5 minus. So 19.5 and 29.5 plus. So 29.5. Now see the here. This is called the inclusive. देखो इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट सेम हो गई. अब दोनों के क्लास इंटरवल में बिना चेंज करे. Yes. Now this side 29.5, 39.5, 39.5, 49.5, 49.5, 59.5, 59.5 and 69.5. So this is the way. Just class interval are 4. Frequencies remain same. So this is called the exclusive inclusive class interval series. ठीक है, चलो. Now, so what is the inclusive? Exactly, the upper limit of the class interval is the counted in the next immediate class. The upper limit of the class interval and the lower limit of next class interval remain class the same. Next class is the same, and there is no need to converting the inclusive method prior to calculation. Now both the limits of the class interval is conducted in the same class. The what is the inclusive वो बता रहे हैं. ठीक है, so I hope you are understand about the inclusive and exclusive series. inclusive को exclusive में कैसे convert करना है आपको आ गया है. Convert in the inclusive to the exclusive into the exclusive series. बेटा ये जो दी हुई है ये इंक्लूसिव सीरीज है और ये जो दी हुई है वो एक्सक्लूसिव सीरीज है. अगेन आई एम रिपीटिंग, इट माइट बी पहले मैंने स्टेटमेंट दिया था.
सो आई थिंक सो मैंने स्टेटमेंट देने में गड़बड़ कर दी थी. सो इट इज योर इंक्लूसिव सीरीज एंड दिस इज योर एक्सक्लूसिव सीरीज. So when you are doing the sum, so you convert your inclusive series into the exclusive series. Clear? Now we are discuss about the open end distribution. है ना? अब हम लोग जो distribution की बात कर रहे हैं वो है open end distribution. What do you mean by the open end distribution? Open end मतलब जिसका opening सही से नहीं हुआ है. It means ना तो ओपनिंग सही से हुआ है ना एंड सही से हुआ है. इट इज कॉल्ड ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. है ना? अब ये सीरीज कैसे होती है वो समझते हैं. सपोज हियर मार्क्स इज गिवन टू यू. यू जस्ट सी दैट बिलो 20, then 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 and above. So here your opening is not proper, your ending is not proper, but keep in your mind students, इससे आपके न्यूमेरिकल करने में कोई फर्क आएगा नहीं. This is the frequency. It means the number of students given to you 7, 6, 12, 15, 7, 6, 12, 15 and 8. Clear? So total number of students is given to you. Total are, do the total first. How much total is this? 13 and 10. This is the 13. 58. Is it? चलो. Now यहाँ below है open और above है. It means 50 से above marks 8 students के. अब exactly आइडिया नहीं हमें कितने जाता है. So suppose 50 is here, तो you आप लोग को यही वो स्टूडेंट का नंबर लेना है. 51 आते हैं तो भी यहाँ लेना है. 62 आता है तो भी यहाँ लेना है. ऐसे इधर बिलो 20 लिखा है तो 0 to 20 तक में जितने भी मार्क्स होते हैं आपको यही कंसीडर करने हैं. बाकी के मार्क्स के लिए आपको डेटा गिवन है. सो इट इज कॉल्ड द ओपन एंड सीरीज. Now we just discuss about the less than and more than once again. Already we had discussed in the mean. यहाँ जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें हम मीन के टाइम, मीन मीडियन के टाइम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी अभी हम लोग लेस देन एंड मोर देन एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर में. और बाकी कोई डिस्कस करना, बाकी ऑलमोस्ट सारी चीजें हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. सपोज द डेटा इज गिवन टू यू. क्लासेस दैट इज द लेस देन 10, then less than. This is the open ended again. हम लेस देन और मोर देन की बात कर लेते हैं. Suppose the classes is given to you less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50 and less than 60. Now number of students, it means frequency is given to you 2, 7, 17, 29, 46 and 50. This is the number of students. अब आपको इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी बनानी है. ठीक है? इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी बनाओ या फ्रीक्वेंसी के ऊपर से ये बना सकते हो. हम कोई भी एक चीज देख लेते हैं. आपको इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी बनानी है तो आप क्या करोगे? क्लास इंटरवल. चलो, एंड देन फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले क्लास इंटरवल देखो. सो लेस देन 10 है और उसके बाद सब में 10 का डिफरेंस है. इट मींस योर क्लास इंटरवल शुड बी द 10. सो लेस देन 10 हुआ तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. आ गया लेस देन 60 तक. यस, 60 से बाहर हम नहीं गए. यहाँ लेस देन 60 था, हमने 60 तक कंसीडर कर लिया. नाउ फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी ऐसा नहीं है. समझो ध्यान से. लेस देन 2 मार्क्स 2 बच्चों के हैं. ठीक है? लेस देन 2 मार्क्स 2 बच्चों के, बट लेस देन 20 मार्क्स 7 स्टूडेंट्स के. इट मीन्स ये 2 स्टूडेंट भी 7 स्टूडेंट्स में आ चुके हैं. सो अगेन एंड अगेन हमें उनकी कैलकुलेशन
नहीं करनी है। सपोज फर्स्ट हमने लिखा 2, सेकंड क्या लिखेंगे 7 minus 2, इट शुड बी द 5. नाउ 17 minus 7, इट शुड बी द 10. 29 minus 17, चलो करो 29 minus 17, it should be the 12. Then 46 minus 29, it should be the 17. And 50 minus 46, it should be the 4. और जब आप इसका टोटल लगाते हो तो ये become the 50. It means ये 50 और ये 50 इक्वल हो जाना चाहिए. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, लेस देन 10 मार्क्स दो स्टूडेंट्स ने बेटा, बट जब लेस देन 20 बोला इसमें ये 7 में ये 2 ऑलरेडी कंसीडर थे तो इसको हमने माइनस कर दिया. अब लेस देन 13 में 17 बच्चों के मार्क्स हैं, पर लेस देन 30 में 10 भी तो लेस देन 30 होता है ना, 12 भी लेस देन 30 होता है, इसलिए इस 17 में से पहले ये 7 माइनस कर देंगे तो हमें 20 से 30 नंबर कितने बच्चों के वो आइडिया आएगा. सो अगर हम इस 17 में से 7 माइनस करेंगे इसका मतलब 20 to 30 मार्क्स कितने बच्चों के हैं बेटा 10 स्टूडेंट्स के. क्लियर. सो इस तरह से आपको लेस देन में से आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से लेस देन बना सकते हैं. अब इसी में हम आपको मोर देन सिखा देते हैं. ठीक है. सपोज आपके पास ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने बनाया है, अब आपको बोला है कि मोर देन बनाओ. अभी हमने क्या किया था, इसके ऊपर से मोर देन लेस देन बनाया था, अब इसके ऊपर से हम मोर देन बनाते हैं. चलो मोर देन बनाना है आप लोगों को. मोर देन है फ्रीक्वेंसी, व्हाटएवर फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज गिवन, ये आपका क्वेश्चन है. अब इसके ऊपर से आपको मोर देन बनाना है. सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मोर देन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है. जब भी मोर देन है तो यहाँ लेस देन 10 था तो मोर देन 0 हो जाएगा. सो मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50. हाँ, मोर देन 60 लिखेंगे नहीं, क्योंकि 60 से ऊपर तो किसी बच्चों के मार्क्स ही नहीं है. सो मोर देन 60 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे. ठीक है. आपको फ्रीक्वेंसी पे से बनाना सिखा रही हूँ. अब क्या है, मोर देन 0 मार्क्स तो सब बच्चों के मोर देन 0 है, मैक्सिमम बच्चों के मोर देन 0 है, मतलब 0 मार्क्स कितने बच्चों के हैं 50 बच्चों के 0 मार्क्स से ज्यादा है. तो यहाँ मैंने टोटल हमेशा आएगा 50 बच्चों के मार्क्स सबसे ज्यादा है. नाउ अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब इसको ऐसे माइनस करते जाना है. अब 50 में से 4 माइनस कर दो बेटा. सो कितने आ गए, सॉरी ये 50 आपने ले लिया, नीचे से माइनस नहीं करना, ये मोर देन वाला है. सो ये 50 आ गया. सो नाउ 50 minus 2 ऊपर से माइनस करते जाओ. 50 minus 2 मतलब 48, मतलब मोर देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स हैं 2 बच्चों के, है ना. 0 to 10 में कितने बच्चे हैं, खाली 2 बच्चे हैं. सो मोर देन 0 50 बच्चों के मार्क्स हैं, मोर देन 10 2 बच्चों के मार्क्स हैं. देन अब क्या हटाना है आप लोगों को 5. सो 48 minus 5 कर दो बेटा. सो इट शुड बी द 43. नाउ minus 10, so 33. Then minus 12. चलो minus 12 करोगे तो क्या आएगा 21. अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, लास्ट वन इज सेम टू सेम, मतलब यहाँ आपको 4 to 4 आएगा. चलो अब इसका बाइफर्केशन यहाँ लिख के बताती हूँ मैं. यू जस्ट डू दिस वन बाइफर्केशन. 2 plus 5 plus 10 plus 12 plus 17 plus 4 equal to 50. चलो पहला आ गया. हाँ, अब इसमें से खाली 2 हटा देना है आप लोगों को, तो हो जाएगा 5 plus 10 plus 12 plus 17 plus 4 equal to 48. आ गई सेकंड की. चलो 5 हटा दो, 10 plus 12 plus 17 plus 4 equal to 43. अब 10 हटा दो. सो 12 plus 17 plus 4 equal to 33. अब 12 हटा दो, 17 plus 4 equal to 21. अब 17 हटा दो तो it should be the 4. It is clear? Now it is visible. है ना. कुछ नहीं करा हमें, सब में से हम लोगों ने क्या करा है, एक 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 माइनस करते गए हैं. सो आपने क्या करा, इसके ऊपर से मोर देन फ्रेम किया,
है ना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे से हमने मोर देन फ्रेम किया। अब हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर सकते हैं जैसे हमने पहले किया था। सो इट इज ऑल अबाउट दैट, ऑलरेडी वी हैड लर्न इन दैट मीन एंड मीडियन एंड मोड चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवरव्यू था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का। नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दी गई है, सो प्लीज सी दैट नोट्स केयरफुली। बहुत सिंपल चैप्टर है, ऑलरेडी वी हैड लर्न इन दिस सेंट्रल टेंडेंसी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 बोथ। क्लियर? ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।